الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين سب سے پہلے میں اپنی پنڈی اور اسلام آباد کی ٹیم کو مبارک دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج دو شہروں نے وہ جلسہ کیا اسلام آباد کی پریڈ گراؤنڈ پہ جو اسلام آباد اور پنڈی کی تاریخ پہ ماشاءاللہ اتنا عوام کا سمندر کبھی نہیں دیکھا، تو مبارک ہو، خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کو۔ اس کے بعد میں صرف ایک اپنے نوجوانوں آپ سب کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سب کے لیے جو اندر گھس بھی نہیں سکے یہاں آپ سب کو، اور وہاں اوپر بھی سب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چیز آپ نے دھیان رکھنی کہ ہماری فیملیز اور ہماری خواتین بیٹھی ہیں، آپ کی ذمہ داری آپ نے ان کا دھیان رکھنا ہے۔ یہ ہمارا دین ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کا ان کی عزت کریں اور ان کی رکھوالی کریں۔ تو یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ کراؤڈ زیادہ بن رہا ہے، آپ نے بڑا دیکھ کے ان کا دھیان رکھنا ہے۔ میں آج سب سے پہلے 26 مئی کی صبح جب میں اسلام آباد پہنچا، صبح کو میں نے فیصلہ کیا کہ ہم دھرنا نہیں دیں گے، اور میں آج آپ سب کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں میں نے فیصلہ کیا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس دن جس طرح آج عوام کا سمندر آیا ہے، اس دن شام کو عوام کا سمندر نے آنا تھا، اور مجھے پتا تھا کہ لوگوں میں غصہ تھا اپنی پولیس کے خلاف اور رینجرز کے خلاف کہ انہوں نے صرف نوجوانوں کے اوپر شیلنگ نہیں صرف کی، انہوں نے عورتوں اور بچوں کے اوپر بے دردی سے جس طرح انہوں نے ظلم کیا، مجھے یہ پورا علم تھا کہ اس دن شام کو انتشار ہونا تھا، اس دن شام کو پولیس اور رینجرز کے سامنے میری قوم نے کھڑے ہو جانا تھا۔ میں نے اس لیے فیصلہ کیا کہ یہ قوم بھی میری ہے، پولیس بھی میری ہے، رینجرز بھی میرے ہیں۔ میں اپنی قوم میں انتشار نہیں پھیلانا چاہتا، میں تو صرف ایک مقصد کے لیے نکلا ہوں کہ امپورٹنٹ حکومت نامنظور۔ میرا مقصد صرف نکلے کا ایک ہے، ایک امریکی سازش کے تحت یہاں کے میر جعفر اور میر صادق نے مل کے انہوں نے سازش کی، ایک 22 کروڑ عوام کی الیکٹڈ حکومت کو ہٹایا، اور اس کے بعد اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو ہمارے اوپر مسلط کیا۔ میں تو صرف ایک وجہ سے نکلا تھا کہ میں پیغام دینا چاہتا تھا سب کو، سارے اداروں کو، کہ قوم کدھر کھڑی ہے، قوم کیا چاہتی ہے، اور قوم کسی صورت ان ڈاکوؤں کو تسلیم نہیں کرے گی۔ میں تو اس لیے نکلا تھا، میں تو اپنے ملک کے اداروں کے خلاف جنگ میں نہیں نکلا، میں اپنے ملک کا
नुकसान कराने नहीं निकला था। तो ये सारे जो इंपोर्टेड हुकूमत, सब कान खोल के सुन लो। मुझे पता तुम्हारी कोशिश क्या है। तुम चाहते हो कि हम अपनी फौज से लड़ पड़े। तुम ये चाहते हो कि हम अपनी फौज और अपनी अदलिया के सामने खड़े हो जाएं। कान खोल के सुन लो इंपोर्टेड हुकूमत वालों, चेरी ब्लॉसम सुन लो, आसिफ जरदारी मुल्क की बीमारी सुन लो, फजल रहमान डीजल सुन लो कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान में इमरान खान का कोई बाहर महलात, जायदादें, बिजनेस, कारोबार, इमरान खान का कुछ बाहर नहीं है। 20 साल बाहर कमाई की, सारा कुछ बेच के आज मेरा मरना जीना पाकिस्तान में। कभी मैंने नहीं सोचा कि बाहर का पासपोर्ट ले लूं। मैं जब 18 साल की उम्र से जब मुल्क से गया, कभी मेरे ज़हन में ये नहीं आया कि पाकिस्तान के अलावा मैं कहीं और रह सकता हूं। तो मैं ये इंपोर्टेड हुकूमत को पैगाम देना चाहता हूं, क्योंकि तुम लोगों का जीना मरना पाकिस्तान नहीं। नवाज शरीफ जैसे उसका इत्तेफाक शुरू होता है, मुल्क से बाहर भाग जाता है। मुशर्रफ के दौर में दुम दबा के बाहर सऊदी अरबिया चला गया, उसके बाद वापस आया, मुल्क को लूटा, फिर जब उसके केस शुरू हुए फिर वापस भाग गया, और अब फिर एनआरओ की इंतजार कर रहा वापस आने के लिए। आसिफ जरदारी कितने साल बाहर रहा, इनकी जायदादें, पैसा जो इधर से लूटा वो बाहर है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर पाकिस्तान नीचे जाता है, अगर रुपया गिरता है, इनके डॉलरों में पैसे हैं, इनकी दौलत में इजाफा होता है। अगर ये मुल्क नीचे जाता है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो फिर बाहर जा सकते हैं। नवाज शरीफ के तो बेटे बाहर हैं, बरतानिया का पासपोर्ट लिया हुआ है, कहते हम पाकिस्तान के शहरी नहीं। जरदारी जब प्रेसिडेंट था 50 दफा दुबई निजी दौरों पे गया, नवाज शरीफ 22 दफा लंदन निजी दौरों पे गया, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो लोग हैं, ये सुने मेरे पाकिस्तानियों, ये गौर से सुने। ये जब इक़्तिदार में था जरदारी, इसने नाकामी के जरिए अमरीकी सिपह सलार को मैसेज दी, क्या पैगाम दिया कि अमरीकियों को कहा कि मुझे जरदारी को पाकिस्तान की फौज से बचा लो। प्रेसिडेंट होते हुए, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट होते हुए अमरीकियों को कहता है कि मुझे पाकिस्तानी फौज से बचा लो। और दूसरी तरफ ये सुना जरा, दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने हिंदुस्तान जब वो गया, हिंदुस्तान में उससे कश्मीरी हुर्रियत दिवस को नहीं मिला कि नरेंद्र मोदी नाराज ना हो जाए। और काठमांडू में
जब छुप के साथ की मीटिंग की नरेंद्र मोदी से तो अपनी फौज से बच के की। कश्मीरियों पर वो जुल्म कर रहे थे, कश्मीरियों पर जुल्म कर रहे थे नरेंद्र मोदी की हुकूमत। और ये मोदी को घर के शादी को बुला रहा था। तो हमें पाकिस्तानियों, हम जानते हैं इनका कोई फर्क नहीं पड़ता अगर पाकिस्तान नीचे जाता है। इसलिए जब मैंने फैसला किया कि मैं धरना नहीं दूंगा, वो इसलिए किया कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान में, हमारी फौज, हमें जरूरत है एक ताकतवर फौज की, इस मुल्क की जरूरत है। और हमें पुलिस, अगर पुलिस ने तो जुल्म किया, वो सारी पुलिस ऐसी नहीं है। और इसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन मुझे ये पता था कि अगर मैं उस दिन धरना दे देता लेकिन पाकिस्तानियों, आज नौजवानों, खास तौर पर आज आपने बात सुनी, मैंने इसलिए आज आप सबको यह दावत दी कि मैं ये साबित करना चाहता था कि अगर ये 25 को जुल्म ना करते, पुलिस छापे ना मारती, टेयर गैसिंग ना करती, रास्ते ना रोकती, तो इसी तरह अवाम का समुंदर आना था इस्लामाबाद। और अवाम के समुंदर ने सिर्फ एक चीज कहनी थी, उन्होंने सिर्फ एक नारा लगाना था, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। क्योंकि कौन ना ये अमेरिका की साजिश तस्लीम करती है, और ना इन डाकुओं को जो 30 साल इस मुल्क का पैसा लूट रहे, ना उनको तस्लीम करती है। और हम सबको, अपने सारे मुल्क के इदारों को पैगाम देना चाहते थे, पुरअमन एहतजाज करके जो हमारा हक है, इन्होंने हमें वो एहतजाज नहीं करने दिया। और आज सारी कौम देख ले कि सिर्फ यहां नहीं हमारी कौम जमा, पेशावर में लोग जमा हुए, आज लाहौर में 4 जगह पर जमा हुए, कराची में, मुल्तान में, पाकिस्तान में हमारी कौम निकली हुई है। और आपको, इदारों को एक पैगाम दे रही है कि पुरअमन एहतजाज आपको एक पैगाम दे रहा है। अभी भी वक्त है कि इन चोरों से इस मुल्क को बचा लो, कि हम सबके हाथ से गेम ना निकल जाए। चाहो भी नहीं तो रोक सकोगे। और तो पाकिस्तानियों, दूसरी चीज मैं आज आपको कहने आया था, देखिए पाकिस्तानियों, लाहौर से मेरी बात सुनना, क्योंकि मैं पाकिस्तान के साथ पड़ा हुआ हूं। मेरे माँ बाप एक गुलाम मुल्क में पैदा हुए थे, हिंदुस्तान में अंग्रेजों की गुलामी थी। हमेशा उन्होंने मुझे बताया कि तुम कितना खुशकिस्मत हो कि तुम एक आजाद मुल्क में पैदा हुए। तो मेरे नौजवानों, सबसे पहले मुझे आपको ये समझाना है कि क्यों हमें आजादी चाहिए थी अंग्रेज से, क्यों कायदे-ए-आज़म ने, क्यों जद्दोजहद की थी एक आजाद मुल्क के लिए। क्योंकि अंग्रेज के जमाने में तो बेहतर कानून चलता था, निजाम बेहतर चलता था। हमारे बड़े बताते हैं चोरी कम थी, कानून की बालादस्ती थी, बेहतर थी। तो क्यों हमने आजादी मांगी? हमने आजादी, सुन लो पाकिस्तानियों, हमने इस
اس لیے مانگی کہ ہمارا اللہ سے دعویٰ ہے کہ لا الہ الا اللہ. یہ ہمارا اللہ سے دعویٰ کہ اللہ تیرے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں سر جھکاتے. علامہ اقبال نے جو شاہین، اقبال کا شاہین کیا تھا؟ اقبال کا شاہین تھا جو زنجیریں توڑ کے اوپر چلا جاتا تھا، پرواز اوپر تھی. کوئی قوم، کوئی غلام قوم بڑے کام نہیں کر سکتی. غلام قوم اچھے غلام رہتے، صرف آزاد قومیں بڑا کام، بڑا نام بناتی. اور ہمارا جو پاکستان بنا تھا، قرارداد مقاصد میں ہم نے کہا تھا کہ ہم ایک اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے، دنیا کو مثال دیں گے کہ اسلام کیا ہوتا ہے. علامہ اقبال نے اپنی شاعری سے بتایا، جگایا ایک غلام مسلمانوں کو کہ تم کبھی شاہی نہیں بن سکتے جب تک تمہارے غلامی کی زنجیریں زمین پہ رکھتی ہیں آپ کو. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی سب سے عظیم مخلوق بنایا ہے، اشرف المخلوقات. اور جب انسان پرواز کرتا ہے فرشتوں سے اوپر چلا جاتا ہے. شیطان کو کہا کہ آدم کے سامنے جھکو کیونکہ اس میں بڑی صلاحیت ہے. لیکن قرآن یہ بھی کہتی ہے کہ جب ایک انسان گرتا ہے تو جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. مولانا رومی نے جو کہا کہ جب اللہ نے تمہیں پڑھ دیے چونکیوں کی طرح ریل رہے ہو زمین پہ، تو لا الہ الا اللہ زنجیریں توڑ دیتا ہے، انسان کو اوپر لے جاتا ہے، چھوٹے انسان کو بڑا انسان بنا دیتا ہے، انسان میں غیرت دے دیتا ہے. انسان میں غیرت آ جاتی ہے جب وہ کہتا ہے کہ اللہ تیرے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا. تو اس لیے بنا تھا پاکستان. ہم انگریز کی غلامی سے آزادی چاہتے تھے، لیکن قائد اعظم نے کہا کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ انگریز کی غلامی کے بعد ہندوؤں کی غلامی کریں. اس لیے پاکستان بنا تھا. لیکن آج ہم نہ ہندوؤں کی غلامی کر رہے ہیں انگریز کی. لیکن آج اگر ہم نے امریکیوں کی غلامی کرنی تھی تو پھر آزادی کی جنگ کیوں لڑی؟ کیوں جدوجہد ہوئی؟ جب پرائم منسٹر تھا تو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اسکولوں میں بچوں کو پڑھائیں گے. کیوں پڑھانی تھی؟ اس لیے کہ ہمارے بچوں کو پتا چلے کہ وہ مدینہ کی ریاست میں وہ کیا انقلاب آیا تھا کہ دنیا کی تاریخ بدل گئی. تو پاکستانیوں یہ سنا بات کہ انہوں نے لوگوں کو آزاد کیا تھا اور وہ آزاد لوگ انہوں نے دنیا کی امامت کی تھی. تو ہم جو آج پاکستان میں ہم جو نکلے ہوئے ہیں، ہم صرف پیغام یہ پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ امریکوں کے غلاموں کو، ان چوروں کو یہ قوم کبھی تسلیم نہیں کرے ہمارا
लीडर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने जब थोड़े से मुसलमान थे, 2 सुपर पावर थी, उन्होंने एक खत लिखा, एक सुपर पावर को, रोमन एम्पायर को, दूसरा जो पर्शियन एम्पायर था, उन्होंने पैगाम दिया। ये नहीं कहा कि हमें इमदाद चाहिए, उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का पैगाम लेके आया हूं, अगर तुम इस पैगाम पर चलोगे अपनी बेहतरी के लिए, नहीं चलोगे तुम्हारी बर्बादी है। और ये 628 और 629 को 2 खत लिखे थे उन्होंने, और वो 10 साल के बाद दोनों सुपर पावर घुटने टेक गई थी। ये तारीख का हिस्सा है। लेकिन मैं आज चाहता हूं फैसल, वो जरा वीडियो चलाओ कि जो आज कल के हमारे हुक्मरान हैं वो क्या कहते हैं। हम अपने नबी की उम्मत है, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये बात सुने, जब मैं आया हूँ तो आप समझो कि शायद इमाम नहीं आया, मैं नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। और ये हमारे इंतहाई महफूज है। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना, ये लगे हुए हैं अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो ड्रिप्स लगी हुई है, जो वेंटिलेटर लगे हैं, सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। तो पाकिस्तानी हो गए आपके लीडर, एक कहते हैं कि हम बेकारी हैं, हम बेकारी हैं इसलिए हम अमेरिका की गुलामी कर रहे हैं। दूसरा कहता है कि हमें अमेरिका ने वेंटिलेटर पर लगाया हुआ है इसलिए हम मजबूर है गुलामी करने के लिए। मेरा सवाल इन दोनों को है, इन फूड पॉलिशर्स को तो मेरा सवाल है कि वेंटिलेटर पर लगाया किसने? 30 साल तुम 2 खानदान इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करते रहे हो। 30 साल, तो 30 साल तुमने हुकूमत की है, तो वेंटिलेटर पर किसने लगाया है? और हमारा क्राइम मिनिस्टर कहता है कि हम तो बेकारी हैं। अब मुझे ये बताओ, अब ये जरा पाकिस्तान ये बताओ कि कहां कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, कहां पाकिस्तान का नारा, कि पाकिस्तान का मतलब क्या, और कहां ये अमेरिका के गुलाम, अमेरिका के जूते पॉलिश करने वाले कहते हैं हम अमेरिका के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। तो मैं आज अब सबके सामने देखिए पाकिस्तानियों, आज मैं पैगाम सबको देना चाहता हूं कि अगर किसी का यह ख्याल है कि हमारी खुददार और गैरतमंद कौम इनको मान जाएगी जो पैसे के बुत की पूजा करते, पाकिस्तानियों में बात सुनो, मैं जरूर से आखिरी शुरू में मेरी बात सुना भी और बातें करनी है। मैं जब इस दुनिया से जाऊंगा, मैं अपने अल्लाह से, अल्लाह के सामने जब जाऊंगा तो मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं कि मैं ये चाहता हूं कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो मेरे जो नौजवान हैं, मेरी कौम, वो ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझ जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब, उसका ये मतलब है कि अल्लाह तेरे सिवा मैं किसी के सामने नहीं झुकता,
اس کو بھی سمجھ جاؤ. بدھ صرف مٹی کے نہیں ہوتے. یہ نہیں کہ مورتی ایک بوتل اور اس کی صرف پوجا کرنا شرک ہے. جو چیز جدھر آپ اپنے ضمیر کی قیمت لگا دیتے, جدھر آپ اپنی زمین کو بیچتے ہیں, وہ شرک ہے. جدھر سچ اور حق کے راستے میں آپ کوئی بھی چیز لے آتے ہیں, وہ شرک ہے. سب سے بڑا بت, پاکستانی اور نوجوان سن لو, سب سے بڑا بت خوف کا بت ہے. خوف لوگوں کو غلام بنا دیتا ہے. کبھی آج تک کوئی قوم بڑی قوم نہیں بڑی جب تک وہ اپنے خوف کے اوپر قابو نہیں پاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تاریخ کا حصہ مسلمان تھوڑے سے نہیں تھے, ہتھیار بھی ان کے پاس جدید ہتھیار نہیں تھے, لیکن وہ ساری دنیا پہ آدھی دنیا کے اوپر چھا گئے کیونکہ وہ آزاد لوگ تھے. وہ واقعی کسی چیز, وہ واقعی کسی قسم کا شرک نہیں کرتے تھے. پیسے کا ہوتا ہے, لوگ پیسے کے سامنے اپنا زمین بیچ دیتے. نوکری, اپنی نوکری بچانے کے لیے اپنا زمین بیچتے. وہ جو پولیس والے اور وہ رینجرز جنہوں نے عورتوں بچوں کے اوپر شیلنگ کی, انہوں نے اپنی نوکری کو اپنی زمین سے آگے رکھا. کوئی قانون اجازت نہیں دیتا کہ آپ عورتیں بچوں کے اوپر ظلم کریں, کوئی قانون اجازت نہیں دیتا, لیکن ان کو خوف تھا کہ میری نوکری نہ چلی جائے. ان کو یہ خوف تھا کہ میری نوکری نہ چلی جائے. اپنی نوکری بچانے کے لیے وہ اپنا زمین کا بیچتے. نوجوانوں, جس دن آپ لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ گئے, آپ کی پرواز اوپر ہونی شروع ہو جائے گی. میں یہ چاہتا ہوں کہ میری قوم خوددار ہو, میری قوم اپنے پیر پہ کھڑی ہو, میری قوم کبھی کسی ملک کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. اور شباز شریف کا پھر سے میں دکھا رہا ہوں, پہلے میں دکھا رہا ہوں, جب میں آئی ہوں تو آپ سمجھے کہ شاید ماننے آیا نہیں آئی, لیکن مجبوری ہے. سنیں میری بات, جب آپ کا پرائم منسٹر اس طرح ہاتھ پھیلاتا ہے تو یہ ساری قوم کو ذلیل کرتا ہے. ساری قوم کو, ہر ایک پاسپورٹ کی کہیں دنیا میں عزت نہیں ہے جب ایک قوم خود ہی پرائم منسٹر کہتا ہے ہم تو بیکاری ہیں. یہ ہے بیکاری, یہ پیسے کے خدا کی پوجا کرنے والے, ان کے پیسے پڑے ہیں باہر, ان کے اربوں ڈالر باہر پڑے, ان کی جائیدادیں باہر ہیں, بینک باہر, بیلنس باہر ہیں, ان کی بزنس باہر ہے, ان کی چھٹیاں باہر ہیں. ان کے بچے بیٹے کہتے ہیں 3 دفعہ پرائم منسٹر, بیٹے کہتے ہیں جی
ہم تو پاکستان کے شہری نہیں، ہم تو برطانیہ کے شہری ہیں. بیٹے ایسے کہتے ہیں جیسے یہ برطانیہ کی مالک کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، گلال منڈی میں نہیں پیدا ہوئے. تو پاکستانیوں، یہ میں آج آپ کو اس لیے بلایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری قوم خدا کو حکم دے. ہم کبھی اس طرح کے چوروں کے سامنے یہ ہمارے اوپر مسلط نہ ہو. اچھا دوسری چیز اب سنیں، پہلی تو تکلیف ہوئی کہ امریکہ نے سازش کی، امریکہ نے سازش کی. سنیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی تکلیف تو امریکہ نے سازش کی. دوسری تکلیف کیا کہ سازش کر کے اس قوم کی اتنی بڑی توہین کی کہ اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکو کو ہمارے اوپر مسلط کیا. اب میں آپ کو صرف یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ میں صرف ان کو ڈاکو نہیں کہہ رہا، میں تو 26 سال سے پالیٹکس میں آیا ہی تھا ان کے خلاف جہاد کرنا، چوروں کے خلاف. لیکن میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک دوسرے کے بدلے میں کیا کہتے تھے، باہر کے اخبار ان کو پھر کیا کہتے تھے. کچھ تو اس عوام کی خدمت کی ہوتی، آج یہ بھی آپ کا نام لینے والے ہوتے. ان کا نام مولوی نواز شریف سمجھیے، یہ مولوی ضیاء الحق کی سیاست چاہتے ہیں. ان کے چکروں میں آپ نے نہیں آنے سے سوچ تو صرف روحانی ہے، اپنے گرفتار میں دھمکنے والی باتیں. آپ سے کچھ نہیں ہوتا سوائے پائے کھانے کے، سوائے روٹیاں توڑنے کے. مغل بادشاہ کو ہم نہیں چھوڑیں گے. بابا 40 پیروں سے اپنی لوٹی کی طرف واپس نکال کر آپ کے قدموں میں نشاور کریں گے. قومی چور یا عوام کا چور یہ دھرتی پہ بہت مشہور ہو چکا ہے. تاریخ کو لاکھ زیادہ کراچی شہر اور لاہور کی لوگوں کے اس ہم کو خطرہ اور کسی سے نہیں ہے. یہ جاتی عمر کے مجیب الرحمان ان سے خطرہ ہے. میرا وعدہ ہے کہ ایک بھائی ان کی لوٹی ہوئی آپ کو دولت واپس لاؤں گا، آپ کے قدموں میں نشاور کروں گا. آپ نے ہمیشہ ہمارے بیچ میں سراغ ہوتا ہے. بھائی صاحب پہلے آپ اپنی کوشش کا قوم کو حساب دیں. آپ سے سنا نہیں، آپ سے جنگ کریں گے. ہم تو رضائی صاحب آپ کے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہے. آپ جمع پیر کا چپا کر دیا ہے، آپ کے اوپر کوئی اعتبار نہیں. آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ہماری پیٹھ پہ چھڑا روپا. تو اب اس دفعہ ہمارا ارادہ ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ سے سنا نہیں ہو سکتی، آپ سے جنگ ہی رہے گی کہ آپ سیاسی نہیں ہیں. کسی مسئلے والے کے پاس چلے جائے، کسی مرد والے کے پاس چلے جائیں تو آپ کو کہے گا گلی گلی میں شور ہے، نواز شریف شور ہے. آپ کس منہ سے جاؤ گے والد سرم ملک کو پھر نہیں آتی. جی کوئی میں نے غلط تو نہیں کہا کہ یہ ایک دوسروں کو 20 سال سے کہہ رہے تھے چور ہے. کیس کی ایک دوسرے کے اوپر، انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر کیس کیا. زرداری کو جیل میں ڈالا نواز شریف نے 2 دفعہ چوری پہ. اور آج سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، سارے اکٹھے ہو گئے ہیں اور مل کے پاکستان کا خون چوسنے آئے ہیں. بلکہ میں نے یہ تو آپ نے پاکستانی دیکھے، باہر کے اخباروں میں، باہر کی کتابوں کے اندر دونوں کی چوریاں لکھی ہوئی ہیں. ان کے اوپر BBC کی چوری کی فلم بنی ہوئی ہے. تو میرا آج
पाकिस्तान के इदारों से सवाल है कि कैसे आपने इन डाकुओं को हमारे ऊपर मुसल्लत होने दिया। In Egypt, the Sharif family business, called the Ittifaq Group, grew from humble origins to become one of the country's largest enterprises. Though some of the Sharif family mills are now almost derelict, at the start of the 90s they prospered, with methods that were as farcical as they were illegal. One Malik investigated and put before the court were allegations that the family, having moved money out of Pakistan in the good times, were now bringing it back when they needed it. ये जरा बाहर के अखबारों में देख लें कि पेंट हाउस पायरेट्स का मतलब डाकू। ये देखें, सो ये बाहर के अखबारों में इनकी चोरियां, बाहर की किताबों के अंदर इनकी चोरियां के ऊपर लिखा हुआ है। ये इस किताब के अंदर रोम सूस्किट की किताब सुनिए जरा क्या लिखा हुआ है कि वो कहता है कि अमेरिकी एजेंसीज ने फोन टैप किया बिलावल भुट्टो को, उसकी वालदा बता रही है कि किधर किधर उनके बैंक अकाउंट्स के अंदर पैसा रखा हुआ है, बैरूनी बैंक अकाउंट में। तो मैं फिर सवाल पूछता हूं, मैं अपने इदारों से सवाल पूछता हूं आज कि क्या इस मुल्क में करप्शन के खिलाफ क्या मैंने अकेले ने ठेका लिया हुआ है? क्या यह आपका पाकिस्तान नहीं है? क्या आपको यह समझ नहीं आ रही कि जब आप मुल्क के ऊपर डाकुओं को मुल्क के खजाने के ऊपर बैठा देते हैं तो क्या आपको यह पता नहीं कि वो मुल्क तबाह हो जाता है? इन्होंने आते साथ ही अच्छा एक और सुनिए, अभी नहीं, अभी मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि इन्होंने खिलाफियत कैसे तबाह की। उससे पहले मैं सवाल पूछता हूं कि मुझे दुनिया में एक मुल्क में मिसाल दे दो कि जिनके ऊपर करप्शन के केसेस, डाके के केसेस, पिछले 10 साल के केसेस, पहले जनरल मुशर्रफ ने इनके सारे केस माफ किए, एनआरओ दिया, 10 साल वापस आए, चोरी की, अब आके ये दूसरा एनआरओ इन्होंने असेंबली में अपने आप को दिया। कभी दुनिया में मुझे किसी बनाना रिपब्लिक में बता दे कि असेंबली में इन्होंने नैब की अमेंडमेंट करके 1100 अरब रुपया माफ किया है। 1100 अरब रुपया। गौर से सुने, इन्होंने जो अमेंडमेंट किया है, इन्होंने नैब को खत्म कर दिया अपने केसेस बचाने के लिए। जो पाकिस्तान को अब आपका पैसा 1100 अरब रुपया वो इन्होंने माफ करवा लिया कानून के जरिए। मैं फिर से पूछता हूं, इस मुल्क के इदारों से पूछता हूं कि क्या ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है? क्या आपका पाकिस्तान नहीं है? मैं अपनी अकीदत से पूछता हूं कि ये आपका काम है कानून की बालादस्ती की हिफाजत करना, रूल ऑफ लॉ की हिफाजत करना पाकिस्तान की जुडिशरी का काम है। मैं अदालत में गया हूं, चैलेंज किया मैंने नैब अमेंडमेंट्स, लेकिन मैं बड़े एहतराम से पूछता हूं कि कहीं ऐसा हुआ आज तक कि आप जाके अपने कहीं हुआ कि मुलजिम काजी बन जाए? क्या कहीं ऐसा हुआ है कि 16 अरब रुपए के एफआईए के केसेस शहबाज शरीफ के और वो एफआईए के ऊपर बैठ जाए और अपने केसेस खत्म करवा दे, गवाह करवा दे? कहीं दुनिया में हुआ ऐसा? कहीं ऐसा हुआ कि नैब की अमेंडमेंट्स करके इस मुल्क के कौम के पैसे 1100 अरब रुपए का टाका पड़े? यही 1100 अरब रुपया, यही 1100 अरब रुपया
देते हो, ठहर जाओ इसको। 1100 अरब रुपया, अगर ये इससे आधा भी पैसा हम सब्सिडीज दे दें, हम बिजली कम कर सकते हैं, हम गैस की कीमत कम कर सकते हैं, हम पेट्रोल की कीमत कम कर सकते हैं और फसलों लमान की भी कीमत कम कर सकते हैं। एक तरफ कौम के ऊपर महंगाई का बोझ, महंगाई की दलदल में आवाम फंस रही है, और दूसरी तरफ अपने आप को 1100 अरब रुपए की NRO टूल दे रहे हैं। मैं अपने न्यूट्रल से पूछना चाहता हूं, सुनिए जरा, देखिए सुनिए जरा गौर से। हमारे दीन में अल्लाह ने जितने भी अपने पैगंबर भेजे थे, उन सब ने एक बात की थी कि आखिरत, हमारी आखिरत उस चीज के ऊपर है कि जितना अल्लाह हमें देता है उसके मुताबिक हम इंसानियत की खिदमत कैसे करते हैं। जो भी अल्लाह का दीन है, हमारा दीन, मसीहों का दीन, यहूदियों का, हिंदुओं का, जिसका भी दीन है, उन सबको एक ही पैगाम मिला था कि आपका दुनिया में इम्तिहान सिर्फ एक होगा कि जितना भी अल्लाह आपको नवाजेगा उससे आप इंसानियत के लिए क्या करते हैं। इमरान खान से जब अपने अल्लाह रब के सामने खड़ा होऊंगा, वो कहेगा मैंने तुम्हें इतनी शोहरत दी, खेलों की ग्राउंडों में इतनी शोहरत दी, बताओ तुमने उस शोहरत से इंसानों को क्या खिदमत की। उसी तरह जो अदलिया है, जजेस से अल्लाह पूछेगा कि मैंने तुम्हें इतना बड़ा मुकाम दिया मेरी जमीन पे इंसाफ कायम करने के लिए, बताओ आपने मेरी जमीन पे इंसाफ कायम किया या नहीं। क्या आपने कमजोर को ताकतवर से तहफ़्फ़ुज़ दिया या नहीं। क्या आप ताकतवर को कानून के नीचे लेके आए या नहीं। वो पूछेंगे आपसे कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1500 साल पहले कहा था कि वो कौम तबाह हो जाती है जिधर छोटा चोर जेल में जाता है और बड़ा डाकू NRO ले लेता है, वो कौम तबाह हो जाती है। ये 1500 साल पहले मेरे नबी ने कह दिया था। तो क्या आज मेरी अदलिया से अल्लाह भी पूछेगा कि यह बेचारे जेलों के अंदर छोटे छोटे लोग जेलों में पड़े हैं, बैंस चोर, मोटरसाइकिल चोर, वो तो जेलों में हैं। तो जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, आपने कैसे उनको NRO टूल नहीं दिया। क्या आपको स्लो मोटो एक्शन नहीं लेना चाहिए था। कौन को लूट रहे हैं, वो दिन दिहाड़े लूट रहे हैं। और मेरे न्यूट्रल से भी वो ये पूछेंगे अल्लाह कहेगा कि न्यूट्रल्स, बड़ी अच्छी बात आपने की कि आप आपसे न्यूट्रल रहना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात की आपने, लेकिन ताकत आपके पास है, ताकत तो आपके पास है। कैसे आपने इन चोरों को मुल्क के ऊपर मुसल्लत होने दिया। क्यों अल्लाह पूछेगा या नहीं पूछेगा, बताओ। अल्लाह पूछेगा, हर किसी से पूछेगा कि जो इस मुल्क में इस जुल्म के निजाम को हमारे ऊपर मुसल्लत जिसने भी किया,
अल्लाह उन सब से पूछेगा, अल्लाह उन सब से हिसाब लेगा। मालिक यौमिद्दीन है अल्लाह, इंसाफ का खुदा है कि कमजोर लोग जेल में, छोटे चोर जेल में और बड़े चोर हमारे ऊपर मुसल्लत किए। अच्छा, एक और कि अल्लाह का हुक्म है अमर बिल मारूफ, उसका हुक्म हम सबको है कि तुमने अच्छाई के साथ खड़े होना है, राय हक पे खड़े होना, और तुमने बुराई और बदी के खिलाफ जहाद करनी। अल्लाह का हुक्म है कि तुम्हें इजाजत ही नहीं न्यूट्रल होने की। अच्छाई और बुराई के बीच में आपने फैसला करना है। तो जो आज ऊपर लोग बैठे हुए हैं, सबसे बड़ा जुल्म चोरी के अलावा वो इस मुल्क की अखलाकियत तबाह कर रहे हैं, अच्छे बुरे की तमीज खत्म कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि वो आप दिखाएं उनको जरा। बच्चों होती है, पैसे खाए जाते हैं, ये नीत पढ़ने दें, इस नीत को मजबूत होने दें, यही पाकिस्तान का मुकद्दर कामयाब करेगा। आज जो सबसे बड़ा सबक है वो ये है कि आपको मैं दुनिया में बहुत से ममालिक दिखा सकता हूँ कि जिन्होंने हमारी जितनी करप्शन के बावजूद तरक्की कर ली है। असासे आमदन के मुताबिक नहीं तो तुम्हें इससे क्या? नवाज शरीफ की फिर अदिया पर गुप्ता चीनी। यानी कि 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुका कहता है कि अगर मेरे एहसासे मेरी हमदर्दी से ज्यादा है तो तुम्हें क्या? तो मेरे पाकिस्तानियों, ये सिर्फ पैसे की चोरी नहीं, ये इस मुल्क की अखलाकियात, हमारी अखलाकियात तबाह कर रहे हैं। और जब एक मुल्क की अखलाकियात तबाह होती है, मुल्क तबाह हो जाता है। तो मैं आज नौजवानों, सुनो जरा मेरी बात। अब मैं आप सबसे एक बात पूछता हूं कि क्या ये इम्पोर्टेंट सेटअप, क्या ये पाकिस्तान के ऊपर जो मसलत किया गया, जरा आज हाथ खड़ा करके बताएं कि क्या आप इसके खिलाफ जद्दोजहद करेंगे? हाथ खड़ा करके बताएं। और मैं ये चाहता हूं सब मेरे पाकिस्तानियों, आप पूरा मन जद्दोजहद के लिए तैयार हैं? फिर खड़े करके हाथ पड़ा। मैं चाहता हूं ये सब देख लें, मेरे मुल्क के सारे लोग देख लें कि ये मुल्क इन चोरों को तस्लीम नहीं करने लगा। आप जो मर्जी कर लें, जिस तरह लोगों को डराया जा रहा है, मैं आज खास एयाज अमीर के ऊपर बात करना चाहता हूं। एयाज अमीर को मैं 35 साल से जानता हूं। मेरे उसने तनकीद की, मेरा मजाक उड़ाया उसने इन 35 सालों में, लेकिन मैंने हमेशा एयाज अमीर की इज्जत की, क्योंकि उसने कभी अपने जमीन का सौदा नहीं किया। वो एक सच्चा आदमी है, वो एक ऐसा दानिश्वर है जो एक काम का सासा होता है, उसको कोई लिफाफा खरीद नहीं सकता। एयाज अमीर वो आदमी है जो अपनी पूरी कोशिश करता है अपनी लिखाई से कि किसी तरह मेरी कौम की इस्लाह हो जाए। तो जो उसे कल जिस तरह उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, मैं आज इस प्लेटफॉर्म से एक तो इसकी सख्त मजम्मत करता हूं, और मैं दूसरा आपको पैगाम देता हूं कि अगर किसी का ख्याल है कि
کے لوگوں کو اس طرح خوف دلوا کے آپ ان چوروں کو ہمارے پر مسلط کریں گے. کبھی اس غلط فہمی میں نہ رہنا. جو بھی یہ سمجھ رہا وہ پاکستانی قوم کو نہیں جانتا، بلکہ یہ قوم اور زیادہ غصے میں آئے گی، اور اس کا آخر میں ملک کو نقصان ہوگا. جو آج صحافیوں سے ہو رہا ہے، عمران ریاض کے اوپر FIR کاٹی ہوئی ہے، صابر شاکر ملک سے باہر گیا ہوا ہے، سمیع ابراہیم کے اوپر FIR. یعنی یہ کیا اس ملک میں کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ کیا یہ غدار ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ساری قوم جانتی ہے کہ اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرتا. یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کی اس بات کے لیے اپنے قلم کو استعمال کرتے، اپنی آواز کو استعمال کرتے. تو میں اپنے اداروں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو حکومت کوشش کر رہی ہے، اس سے یہ رکنے نہیں لگا. ہم سب کے اوپر FIR کاٹی ہوئی ہے. میرے اوپر تو 13-14 FIR ہے، میری پارٹی کے اوپر دہشت گردی کے کیسز ہیں. اس سے کوئی ڈرنا نہیں لگا. قوم یہ خوف کا بت توڑ چکی ہے. قوم پیچھے نہیں ہٹنے لگی. جو مرضی آپ کریں گے، مزید ملک کو اور اندھیرے میں دھکیلتے رہیں گے. ہماری معیشت، مجھے یہ بتائیں نوجوانوں نے ذرا سنیں، پاکستانیوں، آپ کو پتا ہے کہ پاکستان اکنامک سروے کے مطابق ہمارے آخری 2 سالوں میں پاکستان کی جو معیشت تھی وہ 17 سال میں سب سے بہترین ہماری معیشت کی پرفارمنس تھی. سارا پاکستان اکنامک سروے جو حکومت نے نکالا اس کے مطابق ہر چیز میں، انڈسٹری میں، زراعت میں، ایکسپورٹس میں، ٹیکس کلیکشن میں، روزگار میں، ہر چیز میں ہماری حکومت اوپر جا رہی تھی. تو جب انہوں نے اس کو اوپر ہمارے لے کے آئے، یہ 2 مہینے میں جو انہوں نے ہماری معیشت کا حال کیا، آج ہماری معیشت نیچے اور مہنگائی اوپر. ساری قوم کو کہا کہ جناب مہنگائی کی وجہ سے یہ حکومت کو جانا چاہیے. ہم نے جب تھوڑی سی کہا کہ یہ عالمی مہنگائی کی وجہ سے ہمیں تیل کی قیمت اوپر کرنی پڑ رہی ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ ذرا یہ سنیں انہوں نے کیا کہا، یہ سنیں ذرا. تیل کی جو قیمت ہے حکومت کو 70 روپے فی لیٹر کمی کرنی چاہیے. اس لیے 70 روپے فی لیٹر اگر آپ تیل کم کر دیں تو حکومت کو کوئی نقصان نہیں. روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ عوام کے لیے مہنگائی کی لہر لے کر آئے گا. اس وقت 137 روپے کا لیٹر کون آدمی پاکستان میں کس کی جیب میں اتنے پیسے کی وہ خرید سکتا ہے؟ مسلم لیگ نون اور اپوزیشن PDM 1 پیسے کی بھی مزید پیٹرول کی قیمت بڑھانے کی اجازت حکومت کو نہیں دے گی. ڈیزل کے اوپر حکومت پاکستان کو 1 لیٹر کے اوپر 70 روپے نقصان ہو رہا ہے. اس کے اوپر 30 روپے نہیں لگنی چاہیے تھی. تو 70 اور 30 یعنی کہ 100 روپے یہاں سے بڑھنے چاہیے. اس کے اوپر سیل ٹیکس کرنا چاہیے. 150 روپیہ ڈیزل کا بڑھانا پڑے گا اور 100 روپیہ پیٹرول کا بڑھانا پڑے گا. ہم نے پیٹرول کی پرائز بڑھائی ہے، جو ڈیزل کی پرائز بڑھائی ہے، اس سے پاکستان کو دیوالی سے بچایا ہے. تو صرف بقایا کی سنتا ہے تیل سب سے کون سے ایسا ملک ہے تو اس وقت تیل کی جو ہے سب سے بڑا. پچھلی حکومت نے تیل اور پیٹرول کی قیمتیں عالمی منڈیوں میں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، مگر انہیں تیل اور اس کے پیٹرول کی قیمتیں جو باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں اور وہ آسمان سے باتیں ان کی قیمتیں کر رہی تھی اور ہیں، اب اور بھی بڑے
हक है, सच का खुदा है। पहले कह रहे थे कि जी बड़ा इन्होंने तेल 12 रुपए तेल बढ़ाया, तेल की कीमत बहुत ज्यादा महंगाई कर दी, और इक़्तिदार में आके कहती जी इन्होंने तो तेल की पेट्रोल की कीमत कम की हुई थी। पहले कह रहे थे कि मैं ये सिर्फ आपके सामने ये प्ले कर रहा हूं कि क्योंकि महंगाई इनका मसला नहीं था, महंगाई मसला नहीं था, इन्होंने अपनी चोरी बिछानी थी, पैमाना लेना था। और ये आप देख लें कि आज इन्होंने जो कीमतें बढ़ाई है, कहते जी IMF है, आपको तो IMF सिर्फ 2 महीने तक रहा है, 1.5 साल IMF से हम उनके साथ डील कर रहे थे, 2.5 साल हम IMF के साथ थे, और उन्होंने जब हमें कीमतों को कहा तो आपके सामने अगर वो क्लिप है, हमने 10 रुपए कीमत कम की, हमने अपने लोगों को बचाया, और उन्होंने आते साथ ही कीमतें आसमानों पे कर दी, क्योंकि महंगाई इनका इशू नहीं है। और ये अभी महंगाई और होगी, अभी तो आपका डीजल पेट्रोल बढ़ा है, अभी तो मुझे अफसोस है कि आपको बिजली के बिल आने हैं। सो इसलिए कर से तू अड़ जा, कर से तू डट जा, कर से वो बल्ला घुमा। पाकिस्तानियों, मैं अपनी तकरीर के एंड में पहुंच रहा हूं, तो मैं 3-4 बातें करूंगा आपसे। सबसे पहली बात ये देखें, हम भी IMF में थे, आलमी मंडी के अंदर कीमतें तब भी ऊपर थी, पिछली गर्मियों से ऊपर थी। कोरोना के दौर में हमने जिस तरह अपने मुल्क को निकाला, सारी दुनिया तस्लीम करती है। अगर ये होते आज लोगों ने भूखा मरना था। अब से मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूं कि जब मैं कोरोना में लॉकडाउन नहीं लगा रहा था तो इन्होंने हमें कितनी तनकीद की, और अगर ये होते तो क्या करते। जो बुरी तरीके से इलेक्टिव होता तो एक इंसान का जिंदगी का फिक्र करता। अभी इसको कोई फिक्र ही नहीं पड़ता कि पाकिस्तान के आवाम मरे तो सो मरे, बीमार हो तो सो बीमार हो। जो सुबह तक हम लगाएंगे ना तो शायद हमें कर्फ्यू लगाना पड़ेगा, लॉकडाउन का काम चलेगा, आज ही मार दे सबको। जो बच जाएंगे वो कम से कम इकोनॉमी का पहिया तो चलाएंगे ना, कब्रिस्तान तक नहीं चलते हैं। अब कितने लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे, आपने बाजारों की हालत देखी है, आपने मुझके तस्वीर आप दिखा रहे हैं कि अब आप कर्फ्यू भी लगाएंगे तो अब ये रुकेगा नहीं। रिक्वेस्ट करके उनको समझा देंगे और ये दुकानें हम कल नहीं खोलने देंगे, और ये दुकानें हम कल नहीं खोलने देंगे। अगर पाकिस्तान के वो हालात होते जो इटली के हैं, जो फ्रांस के हैं, जो अमेरिका के, इंग्लैंड के, मैं आज पूरा लॉकडाउन कर देता पाकिस्तान को। लेकिन हमारा मसला क्या है, 25% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, जिसका मतलब 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। आज अगर मैं पूरा लॉकडाउन करता हूं तो इसका मतलब क्या है, इस मेरे मुल्क के रिक्शा चलाने वाले, छाबड़ी वाले, रेडी वाले, टैक्सी वाले, छोटे दुकानदार, दिहाड़ी वाले, ये सारे घरों में बंद हो जाएंगे। ये मुझे कह रहे थे कि लॉकडाउन लगा दो। मैं इनको कहता था कि ये बेचारे दिहाड़ीदारों का क्या होगा, वो किधर से खाएंगे, वो
किधर से, अगर वो उनकी दिहाड़ी है तो वो बच्चों का पेट पालते हैं। मैं उनसे बार बार पूछता रहा, आपने इन सबको सुना, इन्होंने कहा जी लॉकडाउन लगा दो। अब अगर ये हम हिंदुस्तान की तरह लॉकडाउन लगा देते तो आज यहाँ लोगों ने भूखे मरना था। तो पाकिस्तान वो 4 मुल्कों में से था, दुनिया के 3 मुल्कों में से था जिसने अपने लोगों को भी बचाया कोरोना से, अपनी माइशत को भी बचाया और अपने लोगों को, अपनी कौम को, अपने गरीबों को बचाया। तो मैं आज इसलिए आपके सामने खड़ा हूं कि हम आज फख्र करते हैं कि 3.5 साल में जो हमने किया, मुश्किल वक्त डाला, और आज इनको 2 महीने में देखेगा मैंने क्या किया, क्योंकि इनका कभी भी चोरों को मुल्क में मुसलत करने के लिए सबसे पहले मुझे जो खौफ है, इन्होंने इलेक्शन कमीशन के जरिए धांधली करनी है। अभी आप देख रहे हैं कि जो सिंध का लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन हुआ, इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के JUI, MQM, उनसे पूछे कि कितनी ज्यादा धांधली की। 15% सीटों पे इन्होंने पुलिस के जुल्म से लोगों को खड़ा ही नहीं होने दिया। तो ये इलेक्शन कमीशन जो बिल्कुल मुतनाज़ा है, जो जानबदार है, ये अभी तो पंजाब के इलेक्शन में सबके सामने पुलिस का जो इस्तेमाल कर रही है, इनके नीचे कभी साहब और शबाब इलेक्शन नहीं हो सकते। तो इनको ऊपर मुसलत करने के लिए पहले तो इलेक्शन में धांधली करनी है। हम कहते हैं कि 2 साल से कि ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया जाए। क्यों ईवीएम मशीन? क्योंकि सारी धांधली होती है, जैसे ही पोलिंग खत्म होती है उसके बीच में जब तक रिजल्ट आता है उसमें धांधली होती है। हमने इसलिए ईवीएम मशीन का कहा था कि जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ बटन दबाओ, रिजल्ट आ जाए। ना इलेक्शन कमीशन ने आने दिया और इन्होंने पूरी तरह जमातों ने उसके खिलाफ पूरी मुहिम चलाई। तो दूसरी चीज, इन्होंने पुलिस का इस्तेमाल FIRs काट दी है। इन्होंने पूरी कोशिश कर ली है कि किसी न किसी तरह इनको मुसलत करें। तो मैं आखिर में ये सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो मुल्क के ऊपर ये किया जा रहा है, जिस तरह इनको मुसलत किया जा रहा है, कोई दुश्मन भी ना करे हमारे से, कोई दुश्मन इस मुल्क पे इतना खतरा ना हो जो इनकी वजह से आज पाकिस्तान को। तो मैं अपनी तकरीर खत्म करते हुए अपनी पाकिस्तानियों को ये पैगाम देना चाहता हूं, मेरे पाकिस्तानियों, मैंने ये कभी किसी की गुलामी नहीं मानी, मैं कभी किसी के साथ नहीं झुका, और मैं चाहता हूं कि आप सबके दिलों में ला इलाहा इल्लल्लाह उसी तरह आ जाए जो मेरे दिल में है, कि आप भी कभी किसी की गुलामी नहीं कबूल करेंगे, आप कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे, आप एक गैरतमंद कौम बनेंगे।
आप वो कौम बनेंगे जो हर मुश्किल वक्त अल्लाह के ऊपर ईमान रख के मेहनत करके हर मुश्किल वक्त से आप निकलेंगे, लेकिन आप कभी किसी के सामने नहीं झुकेंगे, कभी भी एक इम्पोर्टेड हुकूमत को कभी भी आप नहीं मानेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, हम कभी इनको तस्लीम नहीं करेंगे। और अगर इन्होंने जो मर्जी हरबा इस्तेमाल किया, चाहे इलेक्शन में धांधली करें, चाहे पुलिस का इस्तेमाल करें, ये सारी कौम कभी इन चोरों को नहीं मानेगी। मैं अपनी नौजवानों, मैं आज सबको कहना चाहता हूं कि हमारे अब 20 इलेक्शन है, 12 इलेक्शन पंजाब में धांधली करनी है, धांधली की, और हमने पाकिस्तानियों हमने मिलकर धांधली के बावजूद इनको शिकस्त देनी है। मैं फिर से यहां कह दूं, बड़ी पुरानी बात है, मैं वाहिद पाकिस्तान का क्रिकेट कैप्टन हूं जो हिंदुस्तान में गया, उनके एम्पायरों के बावजूद हिंदुस्तान को हरा के आया था। उसके अलावा ना कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान में जीता हमारे एम्पायरों के साथ, और ना हम कभी हिंदुस्तान में जीते उनके एम्पायरों के साथ। सिर्फ एक दफा मैंने कप्तानी की हिंदुस्तान में, और वो वाहिद कप्तान हूं जो हिंदुस्तान से अंपायरों के बावजूद हिंदुस्तान से जीत के आया। अब मेरा सारी कौम तैयार हो जाए। ये जो इलेक्शन है पंजाब का, ये जो पंजाब का इलेक्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ धांधली से जीतेंगे। अवाम सारी इनके खिलाफ है। ये बाहर निकलते हैं तो अवाम या लोटे पकड़ा देती है, या इसको कहती है चोर है या गद्दार है। अवाम इनके साथ नहीं है, अंपायर इनके साथ है। तो सारी कौम सुन लो, पंजाब में सुन लो, हमने इनके अंपायरों के बावजूद इन चोरों को शिकस्त देनी है। पिंडी में तैयार हो, पिंडी के लोग, जामी इलेक्शन है, तैयार हो। मैं फिर से आखिर में अपनी टीम को आपको मुबारक देता हूं, खराज तहसीन पेश करता हूं पिंडी और इस्लामाबाद को, और जो बाहर से भी हमारे इर्द से लोग आए हैं, मैं सबको आज आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपको खराज तहसीन पेश करता हूं, और इंशाअल्लाह आपको अभी से मुबारक दे देता हूं कि कोई नया पाकिस्तान बनने से कोई नहीं रोक सकता पाकिस्तान से लगा।